share the screen. Visible to वो उनको chat box पे डालना Okay. पड़ेगा. So Vanda ma'am. You continue. I am just muting myself. Yes. Can I go ahead, ma'am? Yes, sir. Okay. Done. So sales की टेक्निक मैं आपको सिखाने हूँ and it is going to be rapport building. So मैम चाहता हूँ एक स्क्रीन को और आप आगे करें. One slide ahead. Yes. Okay. So rapport building. Now कोई कहेंगे कि rapport building का मतलब क्या होता है? What does that mean? What does the rapport mean? Can anybody say what does the rapport mean? Rapport का मतलब है comfortableness, connection. Rapport का मतलब है I will share the rapport building का मतलब. Please ma'am, have a one slide. I will share relationship with the customer. Relationship fantastic. Relationship बहुत अच्छा आंसर दिया ने. Relationship good connect, absolutely connect and relationship प्रकाश डोडिया जी कह रहे हैं. Fantastic ma'am, can we move one slide ahead? Yes. So now today I am going to SRO sales के बहुत सारे techniques और tools हैं which I teach in my workshop to entrepreneur. First of all, entrepreneur को तीन चीजें आनी चाहिए: learn well, teach well and sell well. Learn well, teach well and sell well. ये तीनों चीजें एक entrepreneur को आनी चाहिए. आपको सिखाना आना चाहिए, आपको सीखना आना चाहिए और आपको बेचना आना चाहिए. बेचना क्या क्या है? आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपका आइडिया. आपका प्रोडक्ट पहले आपके एम्प्लॉइज को देना होता है, फिर लोगों को बेचना होता है. आपके आइडिया को you have to sell. So one entrepreneur has to be a very good salesperson. पहले समझ जाओ. People, all entrepreneur, all SME, all self-employed people, all businessmen, people who want to grow, you need to learn to sell your idea, your view, your proposal, your thing, your product, your services, your view of growing higher to your team. कहीं हम लोग बेच रहे हैं. So there are multiple sales and techniques, but today I'm going to focus on one thing, which is building rapport. So now what is rapport mean? Rapport is a connection or relationship with someone else. It can be considered as a state of harmonious understanding with another individual or group. Building rapport is the process of developing that connection with someone. Rapport का मतलब होता है connection build करना. अभी मैं आप सब लोगों से कुछ सवाल जवाब करूंगा before going ahead. So you will come to know. Understand, we do not buy from the person we don't like. How many agree? We do not like from the person we don't like, no matter how the good product they are. Have you experienced? हीरा जी, भाविन मेहता जी पी करके किसी का फोन में लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है, भाविन जी, we do not actually buy product, services or idea of anybody. जिनको पसंद नहीं करते. So first, people like you. Second, people trust you, and then they buy from you. If I don't like you, you may have one of the finest products in the world, but I will not buy. If I get the connection, so I will never buy from you. It's as simple as that. So rapport building is a connection that you first connect and then sell. Connection is a key to success. How many agree? Connection in a deep sense. If you connect to somebody over sales, over team, over approach, अगर आप कनेक्ट कर रहे, then only you will be able to sell. जहां पे आपका कनेक्शन नहीं हुआ है ना, आपने महसूस किया होगा कि कुछ कनेक्शन मिल नहीं पाया, वहां कनेक्शन नहीं हुआ, रिलेशन नहीं हुआ, तो रिलेशन नहीं हुआ तो बिका ही नहीं. No matter what the great product we had. So that's the reason this is one of my favorite topic which I normally teach in my online courses which I designed for a year. But here I am teaching you because from this single thing today what I am going to teach you has given me almost sell off. मैंने इससे बहुत sell. Whatever you see me today, because I am able to build this. अगर कुछ देख पा रहे हैं, because मैं बेच पाया अपनी टीम को, लोगों को, कस्टमर्स को, ये because I have learned it. I've practiced for almost 250 customers. I've learned this technique in 2014 wherein I attended one of the seminars जहाँ पे मैंने सीखा था. And 2015 I started applying. Until then now, today also I apply. So friend, this session is no more a knowledge session. This session is more about application. Okay. So let us go ahead, ma'am. Can you have the one more slide ahead, please? Okay. Why is it important? Building rapport is a critical in business if your tool for nurturing strong relationship
while sharpening your capacity to influence other. अगर आप रेपो बिल्ड नहीं कर पाएंगे ना तो इन्फ्लुएंस से नहीं कर पाएंगे. देखो याद रखो, if you are not able to build a connection, then person will not follow you, even if in your team, even if customer. तो कस्टमर को हम चाहते हैं कि वो डिसीजन ले हमारे प्रोडक्ट पे बाय करने का या हमारी सर्विस बाय करने का, तो पहले उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा कि हम उन्हें इन्फ्लुएंस करा सकते हैं. See, without connection there is no influence, without relation there is no influence. How many agree with me? Without connection no influence, without relationship no influence. आप जब तक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाएंगे तो इन्फ्लुएंस कैसा? इन्फ्लुएंस स्टेज पे आ रहे, फर्स्ट सेकंड स्टेज ये रहते हैं. When you established a rapport, able to engage your team and customer on human level where loyalty and connection occurs. Absolutely. जब आपका रैपो एस्टैब्लिश्ड हो जाता है ना, तो आप कस्टमर को जोर से बोल सकते हैं, अरे ये करना ही है आपको, मैं बोल रहा हूं ना. When you say अरे करना ही है, बिकॉज आपने पहला 2 लेवल पास कर लिए, तो आपका इन्फ्लुएंस है. आप अथॉरिटी से बोल सकते हैं, आपको लेना ही है, आपके लिए मैं आया हूं, आपको लेना ही है. ये थर्ड लेवल पे इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन पहले 2 लेवल समझने जरूरी है ना, बिफोर यू क्रिएट अ this level of influence. So ma'am, can we go one more slide ahead? So I have explained you here what rapport means and rapport. Okay, now normally कहते हैं कि greet with energy, मैं always कहता हूँ great with energy. Always meet your prospect. Prospect में कौन कौन हो सकता है? देखो, prospect में आपका customer, आपकी टीम को भी आपको करना सकता है, investor, anybody whom you want to influence, जिसके साथ रैपो बिल्ड करना है. सो ग्रेट विथ एनर्जी, इट मींस आपको एनर्जी से भरा हुआ होना होगा. जब भी आप सेल्स कॉल्स पे जाते हैं प्रोस्पेक्ट से लेके और कोई आपके पास आता है, मतलब आप सीए है तो लोग आपके पास आते होंगे, अगर आपका सीए फर्म है तो. बाकी एंटरप्रेन्योर है वो खुद जाता है. हाउ मेनी एग्री कि सीए के पास लोग आते हैं और एंटरप्रेन्योर लोगों के पास जाते हैं, मतलब जिसका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ट्रेडिंग का बिजनेस है, नॉर्मली वो लोग जाते हैं और सीए के पास लोग आते हैं. नॉर्मली मैंने ये पैटर्न देखा है, अगर चेंज हुआ तो मुझे मालूम नहीं है, फिलहाल तक तो मैंने अपनी 37 साल तक की लाइफ में तो यही पैटर्न देखा है. अभी इसमें कुछ डिस्कशन नहीं है, इसकी गारंटी और मैं नहीं ले सकता. ओके, एनीवेज, तो ग्रेट विथ एनर्जी का मतलब है आइदर समबडी कमिंग इनटू योर ऑफिस और यू आर गोइंग टू देयर ऑफिस, प्लीज बी हाई विद द एनर्जी. उसका एक रीजन है, मैं सबसे पहले बता रहा हूं, थोड़ी माइंड शेयर करूंगा मैं आपसे कि whenever you are going to meet somebody, जरूरी है अगर आप प्रोस्पेक्ट को मिलने जा रहे हैं या प्रोस्पेक्ट आपसे मिलने आ रहा है तो वो हाई एनर्जी पे होगा. हो सकता है जब आप उसको सेल करने गए हो तो उसका चेक बाउंस हुआ है, उसकी टीम में लफड़ा झगड़ा हुआ है, उसकी कंपनी में प्रॉब्लम हुआ है, उसके घर में प्रॉब्लम हुआ है, क्लाइंट इज नॉट हैप्पी, क्लाइंट इज टायर्ड, क्लाइंट हैज अ प्रोबेबली फीवर. हो सकता है ना कि जब हम बेच रहे हैं या तो वो हमारी ऑफिस में है या तो हम वहां पे गए हैं, तो ये केस में ऐसा होता है कि जरूरी है कि क्लाइंट का एनर्जी लेवल हाई होगा. यस और नो? क्लाइंट का एनर्जी लेवल हाई है, वैसा हमें पता तो चल नहीं सकता. ऐसा कोई थर्मोमीटर तो है नहीं कि डाला, चेक किया, सर आपका एनर्जी हाई है तो ही मैं अपना प्रोडक्ट शेयर करता हूं. ऐसा कोई थर्मोमीटर अभी तक बना नहीं है क्लाइंट की एनर्जी चेक करने का, ना ही हम कर सकते. बट हम एक चीज कर सकते हैं. नाउ आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ डॉक्टर दीपक चोपड़ा, वर्ल्ड रिनाउंड ट्रेनर. उनका कहना है कि whenever you are with a high energy, you can raise another person energy. मान लो हम बेचने गए हैं, कस्टमर का मूड मालूम नहीं, उसका झगड़ा हुआ है, लफड़ा हुआ है, चेक बाउंस हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, घर में प्रॉब्लम ठीक नहीं है, बीवी से झगड़ा हुआ है, बच्चों से झगड़ा हुआ है, बच्चा मान नहीं रहा है, बेटी मान नहीं रही है, एम्प्लॉय मान नहीं रहे, टीम नहीं मान रहे, माँ बाप किट कर रहे हैं, ऐसा 1000 प्रॉब्लम हो सकते हैं. को जो एनर्जी लेवल है वो पहले आपको हाई करना है. कैसे? विथ योर हाई एनर्जी लेवल. मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. आप लोग मुझे 2 दिन से सुन रहे हैं, आई होप समबडी आर, 2 दिन जो लोग आए हैं, आर यू फीलिंग दैट जब आप एंटर करते हैं और जब मैं बोलने की शुरुआत करता हूं और धीरे धीरे जब मेरा सेशन आगे बढ़ने लगता है, so do you feel the energy आपका थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा होता है? How many agree with this? No doubt, मैं भी ट्रेनिंग अटेंड करता हूं मेरे मेंटोर्स की. आई फील है कि जैसे आप एंटर करते हैं, लॉग इन करते हैं और जैसे वन स्टार्ट अ सेशन, नो डाउट यहाँ पे वंदना मैम है जो एकदम एनर्जी हाई कर देते हैं आपकी एनर्जी के लिए. उसके बाद मैं आता हूँ और थोड़ा 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 और हाई पे लेके जाता हूँ. तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन बैठा हूँ, ठीक है, मैं अंधेरी लोखंडवाला में किधर एक मोबाइल लेके ऐसे बैठा हूँ, आप किधर बैठे, बहुत सारे लोगों को मैं जानता ही नहीं एक्सेप्ट वंदना मैम, ठीक है, मैं आप लोग को जानता, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं इतनी हाई एनर्जी लेके आता हूं कि आपको मैं हाई एनर्जी देता हूं.
फिजिकल मीट नहीं हमारा, देखो अंडरस्टैंड, हम लोग फेस टू फेस नहीं बैठे हैं, बट स्टिल आई एम एबल टू इम्पैक्ट. डज इट प्रूव दैट योर एनर्जी लेवल इम्पैक्ट क्लाइंट? यस और यस. मैं अपने ही एग्जांपल से प्रूव कर देता हूं. डज दैट प्रूव योर एनर्जी लेवल इम्पैक्ट योर क्लाइंट एनर्जी लेवल? यू हैव सीन इन लास्ट 2 सेशन विथ मी. मैं देखो कोई थियोरेटिकल बातें भी नहीं कर रहा हूं, बिकॉज ये टेक्निक में अप्लाई कर चुका हूं. सी मोस्ट ऑफ द पीपल अग्री. एब्सोल्युटली माय डियर फ्रेंड. तो सबसे पहला की टू सेलिंग और इन्फ्लुएंसिंग, अच्छा कोई बार हमें इन्वेस्टर को कन्विंस करना है या किसी और को, आइडिया इज टू ग्रेट विथ एनर्जी, नॉट ग्रेट विथ, बट ग्रेट होना है एनर्जी के साथ और क्लाइंट को मिलना है. इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, इफ यू आर फीलिंग टायर्ड, if you are have a problem, if you are sick, please don't meet client, but whenever you meet, please meet with the great and high energy. उस दिन जाओ ही मत, because उस दिन आप उस लेवल का सेल, उस लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे. तो जब भी आप एनर्जी से मिलते हो ना, तो क्लाइंट का एक वाइब्रेशन लेवल ऊपर होता है. दीपक चोपड़ा का कहना है, पूरे वर्ल्ड रिनाउंड माइंड पावर ट्रेनर, मतलब डॉक्टर दीपक चोपड़ा इज हाई लेवल, मतलब काफी हाई लेवल. अगर मैं इतना बोल रहा हूं तो समझ जाओ. उनकी किताबी में आज मैं पढ़ता हूं तो एक चैप्टर कभी कभी 4-5 बार पढ़ना पड़ता है, एक चैप्टर 5 बार, तब जाके उसमें से समझ में आता है 5%, क्योंकि वो एकदम हाई लेवल की चीजें की बात करते हैं. दीपक चोपड़ा का कहना ये है कि व्हेन यू आर पॉजिटिव, यू कैन रेज द एनर्जी लेवल ऑफ 50 पीपल अराउंड यू. मैं ये सुना, मैं तो हैरान हो गया. मैंने बोला व्हाट इज द फैक्ट, मतलब दीपक जी किधर से लाए ये ज्ञान. काफी स्टडी किया मैंने इस पे. दीपक चोपड़ा का कहना, ध्यान से सुनना, when you have a high energy level, you can raise the energy level of 50 people. It means suppose the team you around have, the family people you have, the team you have, उनके भी नेगेटिव एनर्जी लेवल को आप सरपास कर सकते हैं. 50 लोग. इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा, यूनिक कुछ लगा, so please type you. If you found something unique, please type you in this. एब्सोल्युटली. जब मैंने भी पहली बार सुना था, अच्छा इसके एडवांस लेवल है, मैं इसमें शेयर नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों को चक्कर आ जाएगा, हमें जूम से उठाना पड़ेगा. दिस इज, ये मेरे सेशन के लिए इतना काफी है, आज के सेशन के लिए ये. बाकी एब्सोल्युटली इट्स यूनिक. सो योर एनर्जी लेवल इम्पैक्ट क्लाइंट. अच्छा सबसे पहली बात है ना कि क्लाइंट को आपसे बात करके खुश लगना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए. अश्विनी मैम बोल रही है आपने विटनेस किया है. यस, इट्स अ मेजर फैक्ट ऑफ द लाइफ, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल ऑब्जर्व. इसलिए कहते हैं ना, सक्सेस कम फ्रॉम अवेयरनेस. है सेल्स की बात ये. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू शेयर ओवर हियर इज दैट व्हेन यू ग्रीट विद द एनर्जी, क्लाइंट को अच्छा फील होने लगता है. अच्छा जब उसको अच्छा फील हो रहा है ना एनर्जी के साथ, तभी से आपका कनेक्शन शुरू हो. अच्छा फील होना चाहिए. दे मस्ट फील गुड विद इन द 4 to 5 मिनट, बिकॉज यू आर विद द हाई एनर्जी, प्रोवाइडेड आपका इंटेंशन भी अच्छा हो. डायर करके डॉक्टर वेन डायर कहते हैं, और इंटेंशन वर्क्स. तो आपका इंटेंशन होना चाहिए, मैं जिसको मिलने जा रहा हूँ, नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं जा रहे यार ये तो कैसा एकदम चिंगूस लगता है, तो ना शकल पे लोग देखे ऐसा, इंटरनल सेल्फ टॉक चालू कर देते हैं एकदम अपना. मतलब वीडियो अलग और ऑडियो अलग. आपका वीडियो अलग है, ऑडियो अलग है, मैच नहीं कर रहा है, तो वाइब्रेशन जाएगा भाई, फिर हाई नहीं लो जाएगा. जैसे ही फेस देखा हम लोग जज करते हैं, अरे ये तो बड़ा चिंगूस लगता है, अरे बड़े ये तो ये लगता है, अरे आ तो पैसों काढ़े एवो ज નથી, अरे आ तो चिकणो लागे છે, अरे आ तो आ लागे છે, अरे आ तो खाली खबर. ये सेल्फ टॉक विल नॉट हेल्प यू, बिकॉज दिस सेल्फ will get you negative vibration. Meet people with open mind. Hello, your video and your audio both has to be matched. अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, बुरा मत लगाना सब लोगों को, लेकिन एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं. सिंपल, डोंट फील बैड, डोंट फील ऑफेंडेड, प्लीज हियर टू मी, बट स्ट्रेट बात बोलता हूं. अगर आप सब लोग जूम में आते हैं और मैं ऐसा डायलॉग अपने मन में डालूं, अरे आ गए अब सब फ्री में लेने के लिए, सिर्फ इतना सा एक स्टेटमेंट भी मेरी एनर्जी को 90% डाउन कर सकता है. हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई यूज दिस बिकॉज आई लर्न द पावर ऑफ इंटेंशन. मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा किताब पढ़े डॉक्टर वेन डायर की. मैं लोगों की वैल्यू करता हूं. अगर आप देखें तो लास्ट में मैं आप सबको थैंक्स बोलता हूं, क्योंकि आपने अपना टाइम दिया. सी मनी यू कैन बाय, यू कैन नॉट बाय द टाइम. So I respect the time of each and every individual who is choosing me to listen to me. Facebook पे हजारों फ्री वेबिनार चल रहे हैं, हजारों. अगर उसमें से आपने मुझे सिलेक्ट किया है तो मुझे दिल से आपको थैंक्स करना चाहिए कि आपने अपनी जिंदगी का 1 घंटा मुकुंद चौहान के साथ निकालने के लिए तय किया, वीक के 7 घंटे. तो आई मस्ट बी थैंकफुल टू यू. सो ये मेरा इंटेंशन है. हेलो,
ये मैं जानता हूं, मैं ट्रेनर हूं, इसलिए मैं हर एक स्टेटमेंट को अपने माइंड में कैसे यूज करूं वो मुझे पता है। तो प्लीज नेवर जज योर क्लाइंट, ગો વિથ ધ ઓપન માઇન્ડ। પહેલે वो अपना રિહર્સલ ચાલુ મત કર દો, તો મફતિયો છે અને આ તો ખાલી એડવાઇસ લઈ જશે ને આપણી પાસે આવવાનો નથી ને બીજા પાસે જતો રહેશે, ऐसा blah 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 ऐसे घूमता रहता है। ये जजमेंट है ना, अंडरस्टैंड, जजमेंट इज अ नेगेटिव फीलिंग। ओपन कीजिए, हाँ आपके प्रोफेशनल एथिकल वे में जितना बता सकते हो उतना बताइए, बट डू नॉट जज। इफ यू वांट्स टू टेक हिज सर्विस ही विल टेक, अगर उसको लेना है लेगा प्रोडक्ट, नहीं लेना है नहीं ले, लेकिन जज के अच्छा उसके बारे में कोई भी नेगेटिव बात आपको आपके मन में नहीं करनी है। हेलो, आपको एक स्टेटमेंट भी, क्योंकि आपका एक स्टेटमेंट है ना 70% एनर्जी आपकी डाउन कर देगा। आई होप आपने सेल्स में शायद ये पार्ट ना सीखा हो, सेल्स का ये पार्ट आपको ना पता हो। लोग सेल्स की टेक्निक की बात करते हैं, मैं सेल्स के फंडामेंटल्स की बात करता हूं। आपका एक स्टेटमेंट, आप जो हाई एनर्जी होके गए थे ना, और जैसे ही क्लाइंट के बारे में नेगेटिव बोलोगे ना 70% एनर्जी डाउन हो जाएगी। इसलिए मैं आपको डू एंड डोंट्स बता रहा हूं। आई एम शेयरिंग यू डू एंड डोंट्स। I hope you got my point. So please do not have the right intent of client, because intention works. Intention works. Okay. So greet with energy. अभी करना क्या है? अभी करना क्या? Ma'am, please you can move the one slide ahead. Okay. तो पहला, अभी मैं पहले ही पॉइंट पे हूं, तो ग्रीट विथ एनर्जी करना क्या? जब भी आप क्लाइंट का कार्ड लेते हैं ना, विजिटिंग कार्ड लेते हैं ना, तो क्लाइंट का प्रोफेशन होता है, आइदर इज अ मैन्युफैक्चरर, he is a trader, he is a service provider, he is into logistics, he is a trainer, he is a falana dish, he has hotels, he has a retail shop, he blah blah blah। क्लाइंट का प्रोफेशन होता है, राइट? तो नंबर वन थिंग यू मस्ट डू इज टू दैट अप्रिशिएट हिज पोजीशन। देखो हर व्यक्ति को अपना बिजनेस अच्छा लगता है, हाउ मेनी अग्री? आप जो भी काम कर रहे हो आपको पसंद है ना, काम से प्यार है ना, तभी आप कर रहे हो, विच इज गिविंग यू ब्रेड एंड बटर। अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मैं बिजनेस कोच हूं, मैंने अपना कार्ड दिया किसी को कि देखो ये आई एम अ बिजनेस कोच, और आप ऐसे पढ़ के रख दोगे ना, अच्छा बिजनेस कोच हो ना, ठीक है, और आपने ऐसे जेब में डाल दिया, आई मेक श्योर आई डू नॉट टेक सर्विस फ्रॉम यू देन। मैं कोशिश करूंगा मैं दूसरा कोई ढूंढू लेके के पास न लू। क्यों? आपने मेरे प्रोफेशन की रिस्पेक्ट नहीं की। मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हाँ ये तो बहुत है आजकल, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो अंडरस्टैंड, यू नीड टू अप्रिशिएट द प्रोफेशन ऑफ एनीबॉडी, क्योंकि वो प्रोफेशन बनाने के लिए कोई व्यक्ति ने बहुत मेहनत किया है। हाउ मेनी अग्री विथ मी? सी ऐसे तो कोई बिजनेस खड़ा नहीं होता ना, अगर वो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, वो सर्विस है, लॉजिस्टिक में सीए है, कोच है, लेकिन वो प्रोफेशन बनाने के लिए दिन रात एक किए, तो प्रोफेशन में आप 5, 10, 15 साल तक जाते हो। यस और यस। और उसको आपने क्या किया? कार्ड लिया, अच्छा यू रन दिस, अच्छा यू आर मैन्युफैक्चरर, हाँ वी हैव मेनी गुड क्लाइंट who are manufacturer who run 100 crore 200 crore। अरे 200 करोड़ वाले के बारे में नहीं सुनना है उनको उनके बारे में सुनना है कि हाँ ओके यू आर मैन्युफैक्चरर। So you need to appreciate the position of the person. Wow, you are into manufacturing, that's superb. Wow, you are into trading, superb. और उस प्रोफेशन का कोई भी एक पॉइंट आपको अच्छा ढूंढ के अप्रिशिएट करना है। वाओ, अगर आप लोग मैन्युफैक्चरर ना करो, आप मैन्युफैक्चरिंग ना करो, तो बहुत सारे लोग ट्रबल में आ जाएंगे। अगर आप लोग ट्रेडिंग ना करो तो सर बहुत सारे लोग ट्रबल में आ जाएंगे। एब्सोल्युटली उनके काम में आपको इंटरेस्ट दिखाना है और अप्रिशिएट करना है, बिकॉज हर किसी को अपना बेबी पसंद होता है। आपका बच्चा काला हो, हाइट में कम हो, लेकिन आपको तो बहुत पसंद होता है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको तो आपका बच्चा अगर काला भी और हंसेगा, दांत दिखाएगा, बोले सो क्यूट, बिकॉज योर बेबी, it is your baby. So you need to understand from another person perspective, appreciate, never keep a card without appreciating। अच्छा, appreciate करते टाइम be expressive। expressive मतलब है अच्छा मैन्युफैक्चर, हाँ अच्छा, आपका जो फेस है ना उसके साथ आपका बॉडी लैंग्वेज भी होना चाहिए। Guess what? The same thing I'm speaking right now, if I speak like this, अच्छा you need to appreciate, and appreciation is a key to success, and you need to, when you take a card, पढ़ना है आपको, and when you read a position, be appreciating to that position। मैंने वॉइस टोनालिटी यूज नहीं किया यहाँ पे, मैंने बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं किया, 70% इफेक्ट खत्म हो गया। यू नो ओनली 7% वर्बल मैसेज जाता है, मोस्ट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस टोनालिटी आपने पढ़ा होगा कम्युनिकेशन में। सो इफ आई डू नॉट यूज द बॉडी लैंग्वेज एंड द वॉइस टोनालिटी, मैसेज विल नॉट कन्वे। सेम जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो आपको फुली एक्सप्रेस करना है। अच्छा, जिनको नहीं आता है उनको सीखना पड़ेगा।
आप सकते हैं कि लेवल 10 on 1 में रोज एक्सप्रेस करने का ट्राई कीजिए, बिकॉज विदाउट एक्सप्रेशन यू कैन नॉट कनेक्ट विद द पीपल. ओके, नेक्स्ट स्लाइड मैम. हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द पॉइंट, आई थिंक दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई थिंक ऑल आर द इंपॉर्टेंट, बट विदाउट दिस द रैपो बिल्डिंग विल नॉट हैपन. अच्छा, now this is a very game changer for your sales or your sales team or your people. Now their story. Now होता क्या है, अच्छा आप मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपना स्टोरी बताना पसंद होता है. अगर मैं आप सबको अनम्यूट करूं और मैं बोलूं आप कैसे स्ट्रगल से ऊपर आए, मुझे हर व्यक्ति एक सेमिनार दे देगा यहाँ पे 1 घंटे का, राइट? बिकॉज हर व्यक्ति अपने घर में शिवाजी होता है. यस, अगर मैं आपको कि आप कैसे पहुंचे भाविश भाई, हर्ष भाई, आप कैसे आपने ये लेवल अचीव कैसे किया, मेरी गारंटी है आप करना अच्छा लगेगा. देखो पहले ना मैं झुपड़ी में रहता था, फिर मैं चौल में आया, फिर मैं फ्लैट में आया, फिर मैं बंगलो में आया, पहले मैं साइकिल में घूमता था. इनफैक्ट आई डू लव, मुझे भी अच्छा लगता है. आई एम नॉट एन एक्सेप्शन, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. कोई मेरी स्टोरी पूछे तो मैं बहुत मतलब दिल से शेयर करता हूँ. हाँ, मैं पहले भाईंदर रहता था, फिर ऐसा था, फिर मेरे पास पैसा नहीं था जाने का. आई से विद द वेरी प्राउड. अंडरस्टैंड, हर व्यक्ति को अपना स्टोरी पसंद होता है, तो यहाँ करना क्या है. मी टू भावेश भाई, देखो अगर चांस दिया जाए ना तो सब लोग शेयर करेंगे, नहीं अभी यहाँ पे करना क्या है. अंडरस्टैंड, व्हेन यू मीट एनी क्लाइंट, अच्छा ये हो सकता है प्रोसेस किसी के साथ 5 मिनट चले, किसी के साथ 15 मिनट चले, किसी के साथ 1 घंटा, पर आपको करना जरूर है, एटलीस्ट वंस आपको करना है. अच्छा, जो लोग इसमें आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, समझ जाना वो आगे भी आपके साथ जाने वाले नहीं है. अंडरस्टैंड. तो देयर स्टोरी में आप मान लो क्लाइंट ने आपको कार्ड दिया और आपने बोला कि यस, मैं बोलता हूँ मैं कार्ड लेता हूँ और मैं बोलता हूँ यस आप मैन्युफैक्चरर है. वाह. तो जो भी क्लाइंट के ऑफिस में आप गए हैं या नहीं गए, वो आपके ऑफिस में आए हैं, जो भी आपको बात करना आप कर सकते हैं कि अच्छा बहुत अच्छा सेटअप बनाया, कितने साल से, वो बोलेगा 15 साल से. अच्छा, फिर तो आपने बहुत अच्छा सेटअप बनाया सर, पिछले 15 साल से मैन्युफैक्चरिंग में, तो बहुत अच्छी बात होगी. तो बोलेगा अच्छी बात है. तो सर जस्ट मुझे क्यूरोसिटी, अगर आप उनके ऑफिस में गए हैं तो उनका एम्बियंस देख के बोल सकते हैं कि सर आपका यूनिट बहुत अच्छा है. छोटा यूनिट है तो बोलने का सर बड़ा प्यारा कॉम्पैक्ट यूनिट है, बड़ा है तो सर ये बड़ा यूनिट है. दोनों चीजों पे आप अप्रिशिएट कर सकते हैं. आई हैव डन इट. छोटा यूनिट इज अ वेरी नाइस कॉम्पैक्ट यूनिट, बिकॉज देखो उसके पास भले 3 ही एम्प्लॉय है, छोटा सा गाला है, लेकिन वो तो उसको प्यारा है. हाउ मेनी अग्री? किसी का बंगला होगा, किसी का राजमहल होगा, लेकिन उसको तो उसकी 3-4 वाली ऑफिस और उसका गाले से बहुत प्यार है. आप ऐसा नहीं सकते भंगार है, मतलब ये छोटी सी जगह, ओ शिट, बैठने भी नहीं हो रहा है मेरे को यहाँ पे, ओ शिट मेरे को तो जम ही नहीं रहा है बैठने के लिए. हाउ डू यू वर्क पीपल, आई डोंट नो. बस खाली इतना बोलो आपका सेल गया, चालू करने से पहले ही आपका कार्यक्रम उधर खत्म हो गया. तो छोटा गाला है, बड़ा गाला है, छोटा ऑफिस है, बड़ा अप्रिशिएट, मेहनत से बनाया ना, मेहनत से बनता है, कोई भी चीज है ना मेहनत से बनती है. नो द स्टोरी. सर आपने ये सेटअप कैसे बनाया, बहुत प्यारा सेटअप है आपका. फिर क्लाइंट अपनी स्टोरी शेयर करेगा, हाँ एक्चुअली क्या हुआ ना, फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा, फिर आपको सवाल पूछ के एकदम चुप हो जाने का. नो फोन कॉल्स, नो कुछ. अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज आप सब लोगों को बता देता हूँ, ये खास करनी है, नहीं तो आगे की कोई भी टेक्निक काम में नहीं आएगी. सबसे पहला काम, जाते आपने अप्रिशिएट किया, उसका जो मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं वर्बली शेयर करता हूँ. सर मैं आपके लाइफ के बारे में बात करने वाला हूँ, कुछ आपके फाइनेंशियल आप सीए हैं तो मैं फाइनेंशियल्स के बारे में बात करने वाला हूँ, या आप इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, सर मैं आपके कंपनी का बेस्ट देने के लिए मैं बात करने वाला हूँ, जिसमें आपका कंपनी का फायदा हो सकता है. जो भी आप लेवल पे जिससे मिलने गए उनको एक रिक्वेस्ट करना है कि सर योर टाइम इज इंपॉर्टेंट एंड माई टाइम इज ऑल्सो वेरी, उनका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट, अग्रेसिवली बताना है. सर योर टाइम इज इंपॉर्टेंट सर ऑल्सो माई टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो दोनों स्टेटमेंट में पहले अग्रेसिव हो गया मैं, फिर मैं पोलाइट हो गया, मेरे टाइम पे आया तो इसलिए मैं चाहता हूँ सर एक 40, 30, 50 मिनट के लिए, जितना भी आपको सेल्स पिच के लगता है. मेरे को 1.5 घंटा लगता था जब भी मैं किसी के ऑफिस में जाता था. मैं बोल देता था कि 90 मिनट मैं आपके बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ, आपकी जिंदगी के बारे में बात करने वाला हूँ, मुझे 90 मिनट चाहिए. प्लीज क्या आप आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए 90 मिनट फोन साइलेंट पे रख सकते हैं? क्योंकि अगर साइलेंट पे नहीं रखवाया ना तो आगे का कोई स्टोरी काम नहीं चलेगा, क्योंकि बीच बीच में उसका टा टू फोन आते रहेंगे और आपका कोई स्टोरी उधर चलने वाला है नहीं. आपने कुछ स्टोरी पूछना चालू किया, एकदम चेक बाउंस થઈ ગયો, बाउंस થઈ ગયો, बाउंस થઈ ગયો, एक काम करो काड़ा पकड़ो પછી મળીશું, उसका चेक बाउंस हो गया और आपने जो समझाया अब तक वो बाउंस हो गया. हाउ मेनी अग्री के क्लाइंट का इंटरप्शन पॉइंट बंद नहीं किया और ऐसा हुआ है?
और हम लोग भी ऐसा दिल से नहीं नहीं सर अपना फोन पटा लो, नहीं नहीं सर फोन पटा लो, नहीं नहीं सर, अरे सेल खत्म हो जाएगा भाई, उसका फोन खत्म होएगा तब तक अपना सेल भी खत्म हो जाएगा। कुछ लोग तो एकदम जेनरस रहते, नहीं नहीं सर आप अपना फोन, सर फोन जरूरी है, फोन मैं आया हूं ना, मेरा तो टाइम का वैल्यू ही नहीं है, पर आपका कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मैं 2 घंटा ट्रैवलिंग करके आया, वैल्यू नहीं है सर, आपको फोन पटा लो आराम से। फिर क्लाइंट क्या बोलता है पता है, एक फोन दिया सर और एक फोन ले लो, फिर आप वापिस एक फोन ले लेते थे, फिर आप वापिस फोन ले, इट होता है नहीं होता है, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। और बाद में फोन लेते 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 फिर अभी मैं आगे के स्टेटमेंट आप लोग जो भी पूरी करना है वो कर सकते हैं, वॉट एवर यू फील यू कैन, आप रिक्त, तो मराठी में कहते हैं रिक्त जगह भरा तो भर डालो। तो सबसे पहली चीज याद रखना, आई हैव लर्नड इन सेल्स इन 2014, I had many mentor who my mentor taught me not to open in any interruption, because मुकुंद तेरा interruption point खुला रहेगा ना, तेरी बातें communicate नहीं हो पाएगी। The one thing I learned from the guru or mentor or training what I have attended, तो सबसे पहले इंटरप्शन पॉइंट बांधना है। अच्छा, रिस्पेक्टफुली, ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हैं नहीं नहीं आप बंद करो, इंट्रोगेटिव और ऑथोरिटी वे में नहीं बोलना है, काइंड वे में, पोलाइट वे में उनसे रिक्वेस्ट करना है। अच्छा, उसके बाद नो द स्टोरी, स्टोरी में आप उनको पूछना है हाँ सर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, बोले हाँ सर मैं मैन्युफैक्चरिंग, कब से आपने स्टार्ट किया वगैरह, जस्ट सर क्यूरियोसिटी है, क्योंकि है ना मुझे हर अलग अलग बिजनेस सीखना अच्छा लगता है, तो हो सकता है मैं आपसे मिलने आया तो मैं आपसे नॉलेज लेना चाहता हूँ, ऐसा एकदम क्यूरियोसिटी। क्वेश्चन शुड नॉट बी आस्क्ड इन इंटोग्रेटिव मैनर, हाँ सर बताइए तो मैन्युफैक्चरिंग में आप कैसे यहाँ तक पहुंचे, वो बोलेगा नहीं बताने का, हाँ बिकॉज आपका क्वेश्चन जो है वो इंटोरोगेटिव वे में नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा एक्टिंग। सर जस्ट एक क्यूरियोसिटी है, मतलब जस्ट आई वांटेड टू नो बिकॉज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड आपने कैसे सेटअप किया ये, तो जस्ट अभी जस्ट भी 2-3 बार बोल दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इंट्रोगेटिव वे में नहीं पूछा तो क्लाइंट बोलेगा अच्छा, फिर क्लाइंट क्या करेगा ना, फिर क्लाइंट चले जाएगा फ्लैशबैक में, शोले, ये उन दिनों की बात है, वो पता तबड़क 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 शोले में आता है वैसे, वो उन दिनों की बात है, तो क्लाइंट चला जाएगा बैक में। 89 में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, अच्छा अच्छा, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, फिर 80% लोग चालू ही हो जाएंगे एकदम। उसके बाद क्या हुआ ना, मैं भांडुप में चौल में रहने के लिए आया, फिर मैं और मेरा भाई थे तो हम दोनों का जमता नहीं था, ये सब सुनना पड़ेगा भाई आपको, ये क्यों, इसका रीजन है मैं, फिर उसके बाद मैं अलग हो गया, फिर मेरे बाप ने मेरे को निकाल दिया क्योंकि मैंने लव मैरिज किया या मैंने नहीं किया या वॉट एवर इट इज, तो ऐसा 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 क्लाइंट एक भयानक भयानक स्टोरी शेयर करेगा, याद रखो, whenever client their past and their success with psychological level पे हम connect होते हैं, that's I have learned in human psychology। अभी मैं मजाक में आपको ह्यूमर में समझा रहा था, अभी सीरियस पॉइंट पे बता रहा हूँ। whenever somebody share their past and their achievement, there is likely a bond creates, understand, that's a human psychology। I've read many books on human psychology, I've understood how human psychology is important as far as influence and sales are concerned, okay। तो ये पूछना क्यों है स्टोरी, क्योंकि नंबर 1 थिंग जब आप उनका स्टोरी पता चलेगा तो वो, अच्छा स्टोरी में 2 पार्ट होंगे कभी भी कोई भी क्लाइंट के, एक तो होगा अचीवमेंट और एक होगा फेलियर, हाउ मेनी एग्री, एक तो होगा अचीवमेंट के जहां पे मैंने अचीवमेंट, एक फेलियर होगा कि मेरा पहला धंधा वो हो गया, मेरी फैक्ट्री जल गई, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, पार्टनर, सबके पार्टनर ने एक बार तो लॉस दिया ही होता है, पता नहीं क्यों, मैं 5 साल से जिन भी लोगों से मिला हूं उनको कोई ना कोई पार्टनर ने तो लॉस दिया ही है, मतलब कॉमन पॉइंट हो जाता है एंटरप्रेन्योर की लाइफ में, हाउ मेनी एग्री, किसी ना किसी पार्टनर को जैसे चूना लगाया ही होता है कि सर मारू पेलो 1 करोड़ નું કરી ગયો એમ, મારું 50 લાખ નું કરી ગયો, મારું 10 લાખ નું કરી ગયો, एक पार्टनर तो सबकी लाइफ में भगवान भेज ही देता है। यू हैव द वन पार्टनर, बिकॉज मैं पिछले 4 साल में आई मेट ऑलमोस्ट 2000 एसएमई, और उनमें से किसी ने नहीं बोला कि सर मेरे किसी, सर एक मेरे पार्टनर ने मेरे को धोखा, ये कॉमन है एंड देयर स्टोरी। तो कस्टमर अपना क्लाइंट पास शेयर करेगा और प्रॉब्लम शेयर करेगा, चैलेंज जो उनकी लाइफ में आए थे, फेलियर, और सक्सेस शेयर करेगा। अभी इसमें आपको करना क्या है, तो मैम कैन यू प्लीज एडजस्ट द वन मोर स्लाइड। Okay, now it is very very important, see this is the key part, इसके बाद ये key part आता है, आप बोलोगे सर सब बोल रहे important है, मतलब है तो सब, लेकिन I have to create highlight for my own point what I've created। Now understand, क्लाइंट की लाइफ में पेन आया था कि सर मेरा फैक्ट्री जल गया था और मेरे पार्टनर ने मेरे को 16 लाख का लॉस दे दिया, और तभी मेरी उम्र 19 साल की थी, तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, कुछ लोग ऐसा करते हैं, you don't care for your client feeling man, you will not do the sell। आपको क्या करना है, ओ सर मतलब उस टाइम पे तो आपको बहुत पेन हुआ, एंड ट्रस्ट मी पेन हुआ ही रहेगा ना, 19 साल। अभी मेरा एक क्लाइंट है,
19 साल में एक आई हैव वन क्लाइंट, 19 साल में उनके डैडी की डेथ हो गई और उनके जो चाचा थे वो आए और बोले कि 50 लाख रुपया तेरे को चुकाना है। अब बेचारा 19 साल का लड़का, तो पेनफुल स्टोरी है कि नहीं है कि 19 साल का लड़का कॉलेज में पढ़ता है, अब चाचा अगेन डैडी की डेथ को 1 महीना नहीं हो के तुम्हारे मैंने 50 लाख रुपया, पेनफुल स्टोरी है या नहीं है? तो ऐसे हर किसी की लाइफ में एक बहुत बड़ा पेन होता है। तो जब भी क्लाइंट अपना पेन शेयर करता है तो आपको भी वो एहसास, सिंपैथी, एम्पैथी यूज करनी है। ओ सर, ओ आई एम रियली सैड, मतलब आई होप उस टाइम पे सर आपको बहुत बुरा फील हुआ रहेगा, डिप्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट लगी रहेगी। आई होप उस टाइम पे आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा रहेगा। आई होप सर वो आपका लाइफ का एकदम बैड टाइम होगा ना, ऐसे करके कनेक्ट कीजिए। तो क्लाइंट भी बोलेगा हाँ वो था, ऐसा वैसा क्लाइंट भी शेयर करेगा। तो क्लाइंट के पेन में पेन फील करना है। कुछ लोग क्लाइंट पेन बता रहा होता है कि उसके मदर की डेथ हो गई, हाँ सर वाह वेरी गुड, या उस टाइम ऐसा हो गया, या फैक्ट्री जल गई। See, यहाँ पे बहुत सेंसिटिव रहना है आपको। When client is sharing his pain story, you can't be just like बैठे और चाय की चुस्की लगा रहे। सर मेरी फैक्ट्री जल गई थी, हाँ बिस्किट मर से बिस्किट, अरे उसका फैक्ट्री जल गया था वो स्टोरी शेयर कर रहा है। आप प्यून के पास बिस्किट मत मांगो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन क्लाइंट शेयर देयर पास्ट, इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मेक अ फील सिंपैथाइज, एम्पैथाइज। थोड़ा मैं ह्यूमर वे में कर रहा हूँ, आई होप यू आर फाइन विथ इट, बिकॉज मैं थोड़ा क्रिएटिव वे में जा रहा हूँ। मैं सुबह शाम यही कराता रहता हूँ, तो ऑलवेज आई हैव अ वे टू गो टू क्रिएटिव, कि मैं आपको कुछ ह्यूमरस वे में मैं कुछ ऐसे बता सकूं। थोड़ा मेरा लैंग्वेज भी ऐसा रहेगा एकदम थोड़ा ऐसा। आई होप यू आर ऑल डिग्निटरीज, ये आप समझ सकते हैं। बट क्या मेरा पाला हार्डकोर धंधे वालों से ही पड़ता है, तो मेरा लैंग्वेज भी उनके साथ, क्योंकि उनको ना बोलूं तो समझते नहीं। कुछ क्लाइंट तो मेरे ऐसे बोलते, सर 8 वर्ष मैंने ड्राइव करवाना, आप मानेंगे नहीं। मेरे पास ऐसे भी 8-8 10-10 करोड़ के क्लाइंट है, चाहिए तो रेकॉर्ड करके स्टेटमेंट बता दूंगा कि सर હું બળદ છું, पहले ही दिन सरेंडर कर दे અને મને છે ને કમ્ફર્ટેબલ છું, કમ્ફર્ટમાં તમારે જ મને આગળ લઈ જાય, ऐसा लिटरली। और ऐसा भी नहीं, उनका उम्र 50 55 3 4 फैक्ट्री है। थैंक यू सो मच। सो फील द पेन एंड प्लेजर। नाउ पेन एंड प्लेजर। अच्छा, दूसरा है क्लाइंट अपनी लाइफ की सक्सेस स्टोरी शेयर करेगा। फिर है ना, मैंने 3 फैक्ट्री बनाई और मैंने गाला लिया, और फिर मैंने अपने बच्चे को फॉरेन भेजा, और फिर मैंने पूरा डेट उतार दिया, और फिर मैंने है ना घर लिया। तो सर उस टाइम पे आपको अपने आप पे बहुत प्राउड फील हुआ रहेगा ना, लॉस में आके फिर आप प्रॉफिट में आ गए और आपने इतना सब करा। सर आपके फैमिली वाले कितने प्राउड रहेंगे उस टाइम पे? अच्छा, ऐसे सारे क्वेश्चन आपको करने, बोलेंगे हाँ मेरे बच्चे लोग तो बहुत खुश हो गए थे, मम्मी तो मेरे को बहुत मानने लगी थी तब से, पिताजी उस दिन से मेरे को मानने लगे कि जब मैंने करके दिखा। होता है ना सबके डैडी, अभी मेरे भी डैडी है। जब मैं ट्रेनिंग कराता था तो मेरे डैडी बोलते थे ये नाटक करने किधर जा रहा है। मेरे पास 2 शादी के सूट थे, एक ग्रे कलर का था और एक 2 कलर के सूट थे, जो मैं शादी में पहन के बैठा था। 3 साल तक मैं वही यूज करता था, और मेरे भाईंदर में आजू बाजू में घर थे, तो मेरे पिताजी को पता ना चले वैसे बाजू के घर से मैं छटक लेता था, 2 अलग अलग थे। और जब भी मैं जाता था तो पैसा तो आता नहीं था शुरू। मेरे पिताजी बोलते थे नाटक किधर है, आज कौन सा हॉल में नाटक है? मेरा पापा इधर आज मेरा भांडुप में नाटक है, आज भिवंडी में नाटक है। इवेंचुअली मैं डेमो देने जा रहा होता ट्रेनिंग की, पर आज मेरे फादर बोलते नहीं नहीं बहुत। तो ऐसा सबकी लाइफ में होता है ना, मेरा अकेले का स्टोरी नहीं है, सबका ऐसा स्टोरी है। तो एनीवेज, जब भी क्लाइंट अपना प्लेजर शेयर करता है ना, अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ऐसे सवाल भी करने हैं, जस्ट डोंट लिसन। वन ऑफ द ग्रेट सेल्स पर्सन ऑन द अर्थ, ब्रायन ट्रेसी का कहना है, खाली लिसनिंग इज नॉट अ लिसनिंग, आस्किंग अ प्रॉपर क्वेश्चन इज अ ग्रेट लिसनिंग। हेलो, और इसको रिस्पॉन्सिव मैनर में लेना। हाँ सर, तो आपके फैमिली को अच्छा फील हुआ रहेगा ना सर, आपके टीम कितनी खुश हो गई रहेगी ना सर, आपने 1 फैक्ट्री जलने के बाद 3 फैक्ट्री बनाई, तो उसका फीलिंग जो है ना और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, क्लाइंट और फूलेगा। और फिर है ना, सबसे एक मजे की बात क्या होती है पता है, बिकॉज आई हैव डन इट टू मेनी मेनी माई क्लाइंट। बाद में मैं सीखा, तो सर ये सिखाया आपने, ये हमारे साथ भी हुआ था। बोला क्या करे सर, क्लाइंट बनाने के लिए। अच्छा, मैंने बोला बनाया तो कुछ अच्छा ही मिला ना, ये मैंने टेक्निक किया। अरे मुकुंद अच्छा वो टेक्निक हम पे यूज किया था तो हम आपके क्लाइंट बने, तो आज हम बहुत खुश हैं। देखो, अगर आपको आपके प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है ना, तो ही आपको टेक्निक पे है ना पीटी फील होना चाहिए। हेलो, इफ यू फील योर प्रोडक्ट एंड सर्विस यू आर गिविंग इट इज नॉट गुड, you should feel technique. Yes or yes? अगर आपको लगता है कि आप जो दे रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विस उससे लोगों का फायदा होता है, तो आपको टेक्निक से जरा भी बुरा नहीं लगना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मैं बड़े दिल से काम करता हूँ लोगों के साथ। और जो लोगों को कहा वो मेरे प्रोग्राम में आते थे, सर ये पहली बार में आया था, मैंने यही किया था आपके साथ। और नो डाउट वो लोग भी क्लाइंट, अभी मेरे क्लाइंट ने 1.5 करोड़ का डील फाइनल किया। वो फाइनल करने का था एक कम से कम 10 लाख का डील, 1.5 करोड़ का, यूजिंग दिस टेक्निक। इज वेरी हैप्पी।
पूरा 15 टाइम सेल्स हुआ उनका। तो प्लेजर जब क्लाइंट, अच्छा ये पेन और प्लेजर जब क्लाइंट फील करता है कि अच्छा फाइनली बहुत मजे की बात, ये सारे इंसिडेंट में जो शेयर कर रहा हूँ क्लाइंट है ना, करने लगता है। अच्छा जब भी आप अपनी अचीवमेंट शेयर करते हो तो फीलिंग आती है बॉडी में, कौन सी आती है? प्लीज टाइप। व्हेनेवर यू शेयर योर अचीवमेंट और योर सक्सेस, you have one great feeling in your body, the one feeling which pops up like सोडा में कैसे सब होता है एकदम, मतलब अगर आप थम्स अप में देखें सोडा, प्लेजर, दैट वर्ड स्टार्ट फ्रॉम पी ओनली। अपने फ्रॉम पी लिखा है तो मैं नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ, नाम क्या है? सेटिस्फैक्शन। ओह यस करिश्मा मैम, यू गॉट इट राइट। प्राउड, राइट देवांगी, यू गॉट इट राइट। प्राउड। जब भी हम अपनी अचीवमेंट, अभी मैं भी अपना चालू कर दूंगा ना गाना, ए मेरे पास पहले 2 सूट थे, ऐसा था, मैं भाईंदर में रहता था, ये वो, भाई नाउ एवरीबॉडी नोज वेयर आई वाज स्टेइंग एंड व्हाट इज द फ्लैट नंबर। मेरे सारे क्लाइंट को मालूम है कौन सा फ्लैट नंबर था यहाँ तक। तो एनीवेज व्हेनेवर समबडी शेयर देयर सक्सेस स्टोरी, उनको प्राउड फील होता है। यस यस। अच्छा अभी प्राउड फीलिंग करता क्या है? वो बाद में क्या बोलेंगे पता है? मजा, मजा क्या? इस इंसान से मिलके अरे मजा कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं किया, आपने वो सवाल पूछा जिनसे प्राइड की फीलिंग पॉपअप होगी। हेलो। अच्छा फिर क्लाइंट साइकोलॉजिकली क्या फील करता? अरे ये बंदे से मिलकर ना मजा आ गया, मस्त मानस, मस्त मानस। अरे मस्त है इसीलिए क्योंकि उसने अपना गाना नहीं गाया। नहीं तो नॉर्मली लोग क्या सेल्स पे जाते, सर मेरी कंपनी पिछले 20 साल से है, बरोबर है, हम लोग के फलाने फलाने इतने बड़े क्लाइंट है, ये हमारा ब्रोशर है, ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारी टीम इतने एरिया में लोकेशन करते हैं, हम लोग ऐसा ऐसा है, वी आर दिस इनटू इट एंड वी आर, और सर हम जैसा पूरा दुनिया में कोई नहीं, वी आर द ओनली वन। तो आपको जो भी लेना है हमसे लेना है। तो आपने पहले ही जाके अपना गाना, क्लाइंट इज येट नॉट लिसन टू योर गाना, क्लाइंट को पहले रेडी करो, पहले उनको सुनो। अच्छा टेक्निकल नॉलेज बाद में रखने का, टेक्निकल नॉलेज बाद में उतारने का। अभी प्रोडक्ट और कंटेंट, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग जो भी, अच्छा हो सकता है कभी टेक्निक 5 मिनट यूज करनी पड़े ड्यू टू टाइम, कभी 15 मिनट, कभी 25 मिनट, बट यूज करना है, मैं एंड पे आपसे शेयर करूंगा कैसे, या 5 से 10-15 मिनट जो भी है। बट जब भी आप इसको यूज करेंगे तो क्लाइंट को लगेगा कि यू केयर फॉर देम। पहले ना टेक्निकल नॉलेज से पहले बॉन्डिंग क्रिएट करनी बहुत जरूरी है। मैंने स्टार्ट में ही बोला था ना, इफ यू डोंट लाइक मी, मैं गोल्ड भी लेके आऊं ना, गोल्ड सर आ गोल्ड चाहिए અને 10 खाली 1000 में 10 तोला आपको तो भी आप नहीं खरीदोगे, बिकॉज यू डोंट लाइक मी, यू डोंट ट्रस्ट मी, सो देयरफॉर यू डोंट गो फॉर माय प्रोडक्ट। एज सिंपल एज दैट। एक कंफर्ट लेवल क्रिएट नहीं हुई है तो मैं कितना भी सोना लेके आ जाऊं आप नहीं लेंगे। सो आइडिया इज टू कनेक्ट फर्स्ट। तो जब भी आप ये स्टोरी सुनते हैं ना तो क्लाइंट को, अच्छा अपने दुख और सुख हम किसके साथ शेयर करते हैं? देयर इज वन गाय, भगवान है ना, भगवान, हम भगवान अपने को दोस्त भेज देता है क्योंकि उसको रिग्रेट रहता है, तो भगवान एक दोस्त भेजता है। तो जब भी हम अपना सक्सेस और अचीवमेंट जब शेयर करते हैं, दुख और सुख, तो दोस्त को बड़ा फील होता है। कई बार तो फैमिली मेंबर भी मजे उठाते हैं, हाँ सारू थी आने जोड़े, जे थी सारू थी, अंदर अंदर से। मैं इमीडिएट फैमिली मेंबर थोड़े थोड़े दूर दूर के, थोड़े दूर दूर के, वो लोग को बड़ा मजा आता है, उनके सामने हाँ बरोबर बरोबर तब बहुत जगह टाइम बहुत मजा है, मतलब मैं जो गुजराती में बोल रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। तो लेकिन फ्रेंड जो होते हैं ना, फ्रेंड, and if you have a true friend, trust me, they will cry with you, and when you will have happiness, they will be happy with. How many agree? I'm talking about true friend, I'm not talking about those मेरा एक friend है, yes, even I have one of my friend, his name is Bijender Rajput, and मेरी मैं बुक भी लिखूंगा, उसमें उसका नाम आएगा। अगले 3 साल, अगले जब मैंने ट्रेनिंग में पैसा नहीं कमाया था पूरे साल अपनी नौकरी में से, वो मेरे को 5000 रुपए देता था पूरे 3 साल, जबकि उसकी पगार 19,000 की थी। तो I still have that friend जिसने 3 साल अपनी 19,000 की पगार में से मुझे हर महीना 5,000 दिया था इन एवरी मंथ, जैसे EMI होता है वैसे। So we all need to have a great friends in life. I'm also blessed to have him in my life. There are many friends I have. So feel pain the pleasure. जब ये प्राउड फील होगा ना तो कस्टमर को कनेक्शन मिलेगा। दूसरी चीज क्या होगी, जब क्लाइंट स्टोरी आप क्लाइंट की स्टोरी सुनते हो ना, तो उसके बाद आज जो स्टोरी बोलने वाले हो ना उसके लिए क्लाइंट तैयार होगा। हेलो, हमको क्लाइंट को सुनने के लिए रेडी करना पड़ेगा। पहले तो आपने क्लाइंट को सुना 25 मिनट, अब ऑब्लिगेशन आ गया कि क्लाइंट को 20 मिनट तो आपका गाना सुनना ही पड़ेगा। और तीसरा बड़ी इज्जत से सुनेगा, क्योंकि इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्लिकेशन। एक किताब है पर मेरे ध्यान में नहीं, मेरी इसमें मैंने पढ़ा है कि जब भी आप किसी पे फेवर करते हो ना तो दे वुड वांट टू गिव यू द फेवर बैक। अगर आपने उनको सुना है 30 मिनट तो कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर कैसा है,
कोई अच्छा करता है तो वी ऑलवेज फाइंड अ वे टू डू गुड टू दैट पर्सन. इफ समबडी डू बैड देन वी ऑलवेज फाइंड टू. नॉर्मली हम ऐसा करते हैं. तो ही विल ऑल्सो लिसन टू लॉ ऑफ रेसिप्लिकेशन इसको कहते हैं. दे विल बी रेडी जब आप अपनी स्टोरी गाने वाले हैं तो मेक श्योर यू डू द पेन एंड प्लेजर विद द क्लाइंट. उनकी सक्सेस में क्वेश्चन पूछिए, उनके फेलियर में भी क्वेश्चन पूछिए और कनेक्ट कीजिए. प्लीज कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, I hope till now I am going fine and you are understanding, you are getting some understanding. आप लोग मेरे साथ हैं तो please type Y and I'm sure you are enjoying also. मैं थोड़ा ह्यूमर भी क्रिएट कर रहा हूँ आज बिकॉज है ना, मुझे मजाक करने का मूड हुआ. क्या करूँ, लॉकडाउन में बाहर तो जा नहीं सकता. पूरा दिन इसके पहले लायंस का था, फिर पर्सनल क्लाइंट का था, तो यही मैं थोड़ी कलाकारी दिखा देता हूँ. इफ आई वॉज नॉट टू बी एन मोटिवेशनल अगर मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होता तो मैं होता. आई लव डूइंग मिमिक. मैच द टोनालिटी एंड पेस. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप सब लोगों से सिखा रहा हूँ. जब भी विद अनदर पर्सन आपको टोनालिटी मैच करना है. इसका मतलब देखो, अभी मैं एक सिंपल मेथड समझाता हूँ. सपोज आई टॉक फास्ट एंड आई टॉक लाउड. वंदना मैम भी फास्ट बोलते मेरी जैसे. हम लोग भी दोनों ऐसे देखा जाए तो सेम है बातचीत करने में, बिकॉज आई हर्ड. यस, वंदना मैम वुड हैव बीन सिंगर. ग्रेट. अच्छा, मैच वॉइस टोनालिटी एंड पेस, ये ध्यान अंडरस्टैंड. अभी मैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना. People who talk fast and high pitch, they love to hear from the people who talk fast and high pitch. The moment the first day I called Vandana ma'am, she was too fast as way I am, and she उनका भी आवाज मेरे जैसा लाउड है और मेरा भी लाउड है, तो कनेक्शन फास्ट बनता है. Vandana ma'am, I hope you agree to this point. So match the voice, tonality and scientific reason है. So understand, आपका जो क्लाइंट है ना, उसका वॉइस और टोनालिटी आपको मैच करना है. इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक देखने बोलूंगा. वॉइस टोनालिटी, इसका मतलब अगर आपका क्लाइंट स्लो बोल रहा है, जैसे कि मान लो आप मिल रहे हैं, हाँ अच्छा है, हमारा प्रॉफिट ऐसा ही है, तो प्लीज डोंट यूज योर हाई पिच देयर. दे विल नॉट लाइक इट. वो लोग ऑफेंड हो जाते हैं. कितना चिल्लाइए, ऐसा बोला. अभी मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बहुत सारे, अरे कितना चिल्लाता है, इतना जोर से कोई बोलता है क्या? बिकॉज उनका पैटर्न है ना एकदम ऐसा है. ओके ठीक है, ओके यस यस ओके, और उनका पेस भी स्लो होता है. अगर जरा सा फास्ट करें, अच्छा आपने क्या बोला मैडम, यू मिस. ओके, सो दे डोंट लाइक यू गोइंग फास्ट एंड हाई पिच. अंडरस्टैंड, जैसा हमारा वॉइस टोनालिटी होता है और जैसा हमारा पेस होता है, तो हम वैसे ही लोगों को पसंद करते हैं. हाउ मेनी अग्री? I talk high and मेरा pace high, last, my tone high. I always love to interact with those people and I get really familiar with them. Similarly, आपका client एकदम हल्के से बात करता है, never use. अगर वो ऐसा, अच्छा ठीक है, प्रोग्रेस ग्रोथ, अच्छा अच्छा फाइन, आप क्या करेंगे, तो आप वहां पे उनके वॉइस मैच करना है एंड लोअर डाउन योर वॉइस. एनर्जी लोअर डाउन नहीं करना है, पर वॉइस. और जो आपका पेस है वो स्लो, क्योंकि क्या है ना, अंडरस्टैंड, जो लोग स्लो बात करते हैं ना, वो लोग स्लो चीजें अंडरस्टैंड करते हैं, और जो लोग फास्ट बात करते हैं ना, वो लोग फास्ट चीज अंडरस्टैंड करते हैं. दैट्स अ साइकोलॉजी. इफ आई अंडरस्टैंड, दैट्स अ साइकोलॉजी. इफ समबडी इज, उनका जो पेस अगर धीरे धीरे आता है ना उनका पेस, सो दे माइट नॉट लिसन टू यू इन वेरी फास्ट. तो जैसे हमारा बोलने का पैटर्न होता है ना, ठीक उसी तरह हमारे समझने का पैटर्न होता है. आप समझ गए सब लोग? सो व्हेनेवर यू मीट क्लाइंट, अगर उनका बोलने का जो पेस है वो स्लो है, मतलब धीरे धीरे बोल रहे हैं और एकदम कम आवाज में बोल रहे हैं, मेक श्योर आप भी वैसा यूज कीजिए. उसके लिए मैं आपको एक स्टडी करने बोलूंगा. एनएलपी के टेक्निक है मैचिंग, इसको बोलते हैं मैचिंग. प्लीज यू कैन गूगल, देयर आर hundreds of YouTube videos available, hundreds of YouTube available called matching. NLP डाल देना, आ जाएगा, and you can learn from it. You can learn from it. Okay, ma'am, can we have the next slide? Yes, absolutely important. Yes, my talking style, yes, that's absolutely fast. yes, मेरा तो वो राजधानी कौन सा, क्या पता नहीं कौन सा है वो, I don't remember the name, but I am on that pace. Yes, absolutely. NLP matching, neuro linguistic programming matching डालेंगे ना, there are hundreds of YouTube videos available, video available, और वहां से जाके आप pick up any one nice video, 2 video and learn about the matching more, because ये मैंने आज इंट्रोड्यूस कराया आपको इस सिस्टम के साथ, आपको प्रैक्टिस करना है. हेलो, मैंने भी इस सिस्टम के साथ आई गॉट इंट्रोड्यूस इन 2014 एंड दिसंबर में,
but I started using it. Yes, NLP matching करके डालना है, matching you will have it. Now use the same language. अभी using same language का मतलब है कि आपको क्लाइंट का लैंग्वेज यूज करना। लैंग्वेज यूज करने का मतलब क्या होता है? अभी नॉर्मली क्या होता है ना, कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो कभी कभी क्लाइंट क्या बोलते हैं, अच्छा तो मेरे को कितना प्रॉफिट होएगा? तो आप है ना, ऐसा वर्ड में यूज मत करो कोई रेवेन्यू होएगा, आप बोलो आपको इतना प्रॉफिट होएगा। की वर्ड्स ऑलवेज हैज टू बी रिपीटेड। सो यू मीन टू से आई विल सेव दिस मच इलेक्ट्रिसिटी एंड मेरा प्रोडक्टिविटी इतना बढ़ जाएगा। यस सर, योर प्रोडक्टिविटी इतना बढ़ जाएगा, या प्रोडक्टिविटी की पॉइंट सेल्स के कभी भी सेम रिपीट करो, क्योंकि क्लाइंट के दिमाग में प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्टिविटी। आप बोलो नहीं नहीं सर आपकी टीम एफिशिएंट हो जाएगी, डो नॉट शो योर वोकैबुलरी, जार्गन यूज मत कीजिए, और ये भी मत बताइए कि आपके पास लैंग्वेज का शब्दकोश का भंडारा है। हर व्यक्ति का अपना एक समझने का लेवल होता है। यस यस, सो इफ क्लाइंट इज सेइंग, यू मीन टू से कि मेरा 4 स्टाफ का काम ये कर लेगा, यस आपके 4 स्टाफ का काम ये कर लेगा। हेलो, बिकॉज हर व्यक्ति का समझने का जो स्टाइल अलग है, और उसके वर्ड ही आपको नॉट सारे बट कीवर्ड्स, जो आपके सेलिंग पॉइंट के कीवर्ड्स है ना, वो आपको सेम यूज करने हैं। अभी जैसे हमारी इंडस्ट्री में जब हम बोलते हैं सर सो मेरा बिजनेस इतना ग्रो करेगा, हाउएवर मेरे को स्केल वर्ड अच्छा लगता है, बट व्हेन क्लाइंट टेल्स मी हाँ सर इतना ग्रो करेगा, बिकॉज स्केल उनके लिए स्केल वो ग्रो वाला स्केल है, वो समझ गए 10 टाइम्स वाला। सो कभी भी सेलिंग पॉइंट में यूज द सेम लैंग्वेज। डू नॉट शो दैट आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी है और आपके पास बहुत सारा नॉलेज है। Please use and key point at least. I hope you got this point. Ma'am, can we have the next slide? Yes, match the body language. It's very, very important. Not exactly, but match the body language. It means अगर client थोड़ा सा ऐसे बैठा है 90 डिग्री पोस्चर में, तो आप भी 90 डिग्री में बैठ जाइए। क्लाइंट थोड़ा सा रिलैक्स बैठा है तो आप भी रिलैक्स बैठिए। इससे फेमिलियरिटी कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। आप मैचिंग में सीखेंगे, ये मिररिंग है। मैंने वो पहले मैचिंग बोला था, ये मिररिंग है, दोनों एनएलपी टेक्निक्स है। तो मिररिंग क्या कहता है, जब आप क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करते हैं ना, सेम फीलिंग, एक लॉ ऑफ फेमिलियरिटी बिल्ड होती है, लॉ ऑफ फेमिलियरिटी बिल्ड होती है, और वहां से क्लाइंट ओपन अप करना स्टार्ट, अरे ये तो बोलता भी मेरे जैसा है, एंड द बॉडी लैंग्वेज भी, और कभी तो सेम टाइम पे ब्रीथ कर, यू गेट इन द कॉन्वर्सेशन, यू ब्रीथ इन द सेम मैनर। देखा है आप कभी डीप कॉन्वर्सेशन में आ गए और ब्रीथिंग भी सेम टाइम पे हो रहा है, because I have gone through this, मैंने स्टडी किया, इसके लिए मैं बता पा रहा हूँ। So match the same body language. Ma'am, can we have the next slide if any? Sir, I think there are 11 slides and this is the last one. Yes, okay. So now as long as I'm concerned, one point एक missing रह गया, because I forgot to keep or I forgot to, I don't know. But whenever client अपना पेन एंड प्लेजर बता रहा है ना, तो एक चीज जरूर करनी है, ऑलवेज क्लाइंट को कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट, अच्छा कॉम्प्लीमेंट में कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला फैक्ट्री जल गई और बाद में मैंने 3 फैक्ट्री बनाई, तो क्या कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि सर आपका विल पावर बड़ा बहुत स्ट्रांग है, आपके पास फैक्ट्री जली लेकिन आपने वहां पे रुके नहीं और आप चलते रहे और आपने ये किया, सर हैट्स ऑफ टू यू। सो कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं कि आपका दीवार अच्छा और आपका घर अच्छा है और सर आपका ये डेस्क अच्छा है, सर एप्पल का लैपटॉप अच्छा है, ये सारी चीजें नहीं। कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज हैज टू बी जेन्युइन। जब क्लाइंट अपनी पेन एंड प्लेजर शेयर करता है, इसलिए तो मैं स्टोरी जाने, बिकॉज व्हेन यू कॉम्प्लीमेंट एनीबॉडी, उनका वाइब्रेशन लेवल अगेन हाई हो जाता है। सो ऑलवेज फाइंड आउट कि आप क्या कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लाइंट को, एंड गिव देम अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट व्हाइल पेन एंड प्लेजर। जब आप स्टोरी शेयर कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर आपका दिमाग आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्या कॉम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, because in this way you are helping a client to feel good, and when you help your client to feel good, they will help you feel good by buying, not buying, then giving a reference. So अगर आप ये सेल्स का एंटायर टेक्निक करते हैं, मैं नहीं कहता कि 10 में से 10 लोग मान जाएंगे, पर 100% 10 में से आपका रेशो 2 का है, तो गारंटी से देता हूँ 4 का हो जाएगा। और गारंटी से मैं बोलता हूँ, अगर आप 50,000 का टिकट बेचते थे, तो आप 5 लाख का टिकट बेच पाओगे विद दिस टेक्निक। So it is very important and it has to be used after lockdown. इसकी आप तैयारी कर सकते हैं and you can start using all of this. So thank you so much all of you guys. Today I have shared sales, rapport building. Yes, tomorrow we have a scaling your business. So I think it will be a continuity with the sales. First you have understood how to make a background when you reach to the client, understand them, be passionate, be compassionate with them,
make a building, relationship bonding. What you said is what I will also like to share, because I go for I have stood for the WRC election. So how it goes, I have to first build a rapport with any Thank chartered you so accountant much. whom I meet, so that is how it becomes popularity or whatever. You have to listen to them. That is what is the best thing what we have learned today, sir. And I hope all of you who has participated today will definitely have a multiplier effect in their business when it is going to open on the Monday. जय श्री मुझे पूछ रहे आप 4 से 5 बार रिपीट कर दो. यस, बिकॉज आई वांट टू हैव द इनकलकेशन. मेरा आंसर ये है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग में इनकलकेशन हो, एंड दैट्स द रीजन पर्पसली आई डू इट. पर्पसली बिकॉज आई मैं जब भी आप कोई चीज याद करो तो मुकुंद चौहान याद आना चाहिए उस टाइम पे. Yes. So that's the reason I do it consciously. We will have one day a little earlier. People will also like to share their story, but in the last session we will have that, sir. Right? We'll plan that way. Mukund sir, do you Absolutely. think? If anybody has any connected with us, so they will be having query. You have 5 minutes more. Yes, if you have any question. Ma'am, if anybody has question, they can ask. Yes, I'm just trying to see the chat box. They are just appreciating your learning is always great, and with you it's really good. So that's what I was telling. At the end of the day, 8 o'clock, retaining your energy is what is within. You have to imbibe that culture within. You should be happy within, then you can translate happiness to others. That is what I also firmly believe. जो आपके पास है वही आप किसी और को दे सकते हो. Absolutely. You cannot give what you do not have. That's what I've learned from my all mentor and role model, I will say. You can't give what you don't have. Simple as that. So thank you so much everybody for appreciating me, and thank you Vanna ma'am. I will say thanks so much VNP Infotech and DNP Investment to organize such a thing wherein I can share my knowledge and empower entrepreneur. So once again, I thank Vanna ma'am, VNP Infotech and VNP Investment. Thank you. See you tomorrow. Same hour time. Is too short for you, sir. Acha, ma'am, let me give 2-3 minutes, and I need to appreciate people who have joined my session. So just give me yes. बहुत सारे लोगों ने chat किया. I'll reply to all the chat one by one. Always. Anyone if wants to speak, we can unmute them. Hiral, you want to speak? Yes, if you want to, we will unmute. No issue. Thanks to P. Now you can unmute yourself. Hello. Yeah. Hello. Yeah, you have done nicely. Whatever you have thrown from your body language, your acting or anything that has come right way in the same manner we want to talk to our clients. Your voice is breaking. Hello. Yeah, hello. The same way it has. You can remove the headset. Okay, it's okay. I'll come again next time. You can others can speak. You can, ma'am, you can remove the headset and you can speak from your mobile phone. She will come again. That's what Hiral she answered. Hiral has said. I will repeat. To speak, yeah, I will repeat what Hiral said. Okay, you have narrated rightly. We have learned so many techniques today. So now when dealing with the clients, we will be more compassionate and more, body language will be same. We will try to imbibe that in our culture. That's what she wanted to convey. And your body language was also good enough to translate whatever you wanted to say to us. Daman bhai, you want to say something? Okay. If anybody wants to speak, yes. If anybody wants to speak, I'm available. If they want to say anything, want to ask, or I'm available. किशन शर्मा जी बोल रहे हैं कि 1 घंटा बहुत कम है. Have you heard, sir? Okay, ma'am. I hope, ma'am, your voice is breaking. Okay. So is it audible now? मैं तो सुन ही नहीं पा रहा हूँ. Oh God. Yes.
So the technology is telling खाना तैयार है, घर पे जाइए, खाना खा लीजिए. It's clear. It is. So fantastic because I think we are facing some technical error. Technical error that it is forcing us. Okay, now time is over. Tomorrow again 8 o'clock we will meet sharp. And again I request all of you, whatever learning Yes, we I are getting, understood. please convey to other your friends and let them also enjoy this wonderful session by sir. Tomorrow is scaling your business, and I think all businessmen, entrepreneurs should definitely like to hear words of wisdom from Mukund sir. Thank you, sir. Thank you Hiral ma'am, thank you Karishma ma'am, thank you Kailash ji, thank you Devang ji, thank you Kishan Lal ji, thank you Kalpana ma'am, thank you Bhavish bhai, thank you Jayesh Parekh ji, thank you Ashwini Doshi ma'am, thank you Harsh ji, thank you Bhavish Puri ji, thank you Bhavish bhai Nelko, thank you Vijay ji, thank you Hiral Mehta ma'am. So thanks to everyone who came, who joined me, and who invested the time with us. Thank you so much, guys. So have a fantastic dinner ahead. Yes. And then we'll meet tomorrow. And tomorrow's topic is very interesting: how to scale your business. It's one of my things which I entrepreneur. Okay, bye bye. Bye. Take care. Have a fantastic